آج پروگرام میں بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی، جنہوں نے آج اپنے دفتر میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی سلامتی کے امور اور سیکیورٹی کے معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے بعد بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی، جنہوں نے کل پاک امریکہ تعلقات سے متعلق پریس کانفرنس کی۔ ہفتے کے روز امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کے کولیشن سپورٹ فنڈ کے $300 ملین روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ یہ معاملہ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کے ساتھ اٹھائیں گے، جو بدھ کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی کا ذمہ دار پچھلی حکومتوں کو ٹھہرایا۔ پچھلی حکومت کی صورتحال یہ تھی کہ ان کا تو کسی لیول پر کوئی انگیجمنٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، کوئی گفت و شنید بھی نہیں ہو رہی تھی، اور بالکل ایک تعطل تھا، جسے کہتے ہیں نا، ایک آلموسٹ ایک بریک ڈاؤن تھا۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک اوپننگ ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس اوپننگ کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ جو ہماری کنسرنز ہیں، ہمارے جو ایشوز ہیں، اور ہمارے جو شیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں، اور بہت سے ہمارے آبجیکٹیوز ہیں جہاں ہمارا کنورجنس آف انٹرسٹ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ وزیر خارجہ کی ہی اگر مزید بات کریں تو آج انہوں نے اپنے افغان ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات کی۔ افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے شاہ محمود قریشی کو کابل کے دورے کی دعوت دی۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں سیٹھی۔ میں نصرت جاوید۔ 05126060228 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو فون دیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا فون ملتے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ آپ چاہیں تو ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/bolbolpakistan1۔ ٹویٹ کرنے کے لیے ہمارا ہینڈل ہے bolbolpakistan_، اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں bolbolpakistan@news.tv۔ بلبینہ بی بی، آپ نے جو تینوں خبریں دی ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ یس باس، آج کل ٹھیک ہے نا، ان کو میرا خیال ہے آرمی چیف صاحب کی آج جو دوبارہ ملاقات ہوئی، بلکہ اس ہفتے میں غالباً یہ تیسری ہو جائے گی یا گزشتہ 8-10 دنوں میں، تو ان سب کا واسطہ تعلق بھی یہ تمام ان 3 خبروں سے ہے جو بظاہر آپ افغانستان، امریکہ اینڈ میری اگرچہ پریشانی تھوڑی سی اور ہے۔ آپ کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج ہے پیر، ہاں یس ٹھیک ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ، ہم ایک زمانے میں بہت دہائی مچاتے رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ وزیر خارجہ نہیں تھا، رائٹ، ٹھیک ہے نا۔ اب خدا کی قسم سے میں مختوم شاہ محمود قریشی صاحب کا کنڈکٹ دیکھ کے دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ پاکستان کا وزیر خارجہ نہ ہی ہو تو اچھا۔ یہ جو آپ نے کلپ دکھائی ہے، یہ کلپ میں پینل والوں کو کہوں گا مجھے اس پروگرام میں یہ بات کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر چلانی ہے اور بتانا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا مذاق کیا جا رہا ہے اس وزیر خارجہ کی طرف سے۔ لیکن اسی پریس کانفرنس میں جہاں سے آپ نے یہ کلپ لی ہے، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ صاحب وہ فرانسیسی صدر کی گفتگو تو یہ وہ نہیں، یہ طے ہوا ہے کہ پیر کے دن، یعنی کہ آج ہونی تھی، آج اس وقت کیا وقت ہوا ہے؟ 8:06۔ تو پاکستان میں ہاں نہیں، فرانس میں بھی اب اس وقت ورکنگ ڈے ختم ہو گیا، نہیں وہاں پہ 2 گھنٹے رہ گئے۔ ہاں بالکل وہی کہہ رہی ہوں نا، وہاں بھی ختم ہی ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب لیکن بہرحال وہ یہ کہ ہیڈ آف اسٹیٹس اینڈ گورنمنٹ دے کین آلویز رات کو 2 بجے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی ایمرجنسی غالباً ہے نہیں۔ ہاں شاید وہ ناراض ہو گئے، آج کوئی نہیں بی بی مجھے نہیں پتا نا، ہم کیسے بتائیں؟ ہمیں تو یہ کہ رونا ہمارا یہ تھا کہ ہمارے ہاں وزیر خارجہ نہیں ہوتا، اس لیے نہ ہم دنیا کے آگے اپنا کیس دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی مجھے اور تمہیں خبر ملتی ہے۔ بالکل، لیکن اب وہ آگے، اب جب ہے تو غلط سلط جو مرضی خبر، اور وہ بھی مخدوم ہیں اور بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تو مجھے کیا اطلاع دے رہے ہیں؟ اب وہ وزیر اعظم صاحب کی سینئر ہمارے دوستوں سے ملاقات تھی، ٹھیک ہے، اس ملاقات کے دوران میں تو
आखिरी दिन जो हफ्ते के होते हैं, यू नो कि मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहता हूँ। वो तो आज मैंने देखा, इसके बारे में देख रहा था, स्टोरी तो फॉलो करता रहा। तो हमारे दोस्त साथियों ने वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद ARY के साबिर शाकिर साहब ने और दूसरे हमारे हामिद मीर साहब ने, उन्होंने ये कहा कि जी हम दोनों की मौजूदगी में इत्तला आई कि फ्रांसीसी सदर वज़ीर आज़म साहब से बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर बात कर लें। हाँ, मैं बिजी हूँ। दरमियान में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। बाद अज़ां बहुत सारे हमारे दोस्त, उन्होंने इन दो हमारे सहाफ़ी दोस्तों पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने एक फील गुड स्टोरी इस्टेब्लिश करने के लिए इमरान खान साहब का शायद को लिफाफे उन्होंने भी देने शुरू कर दिए होंगे। तो अब इन पे ही लगेगा। और मैंने देखा कि पूरा सोशल मीडिया जो है, सब इतनी इम्प्लॉजिबल सी स्टोरी है। कौन मानेगा कि वो फ्रांस के सदर का फोन आया, उन्होंने कहा उनसे कहा मैंने नहीं करनी, आधे घंटे बाद फोन करो, कम ऑन। नहीं, इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, हमारे हीरो हैं। अच्छा, पता इसमें कौन सी हीरोइक बात है या फील गुड फैक्टर कौन सा है इसमें? क्या फील गुड है कि उन्होंने कहा लगा जा मैं गल। अच्छा, अब अगर फर्ज करो उसके बाद अब ये वजीर खारजा है ना हमारा, अब तो कोई मसला नहीं ना। तुम्हारे जहन में जितने भी सवालात हैं उनको क्लियर करने के लिए मौजूद हैं एक वजीर खारजा। ये वजीर खारजा साहब ने कहा कि नहीं साहब, बात ये थी कि वो टेलीफोन आया था कि टाइम तय कर दिया जाए कि जब फ्रांस का सदर और पाकिस्तान का वजीर आजम एक दूसरे से बात कर सके। राइट, मगर वो भी इमरान खान साहब को बताने की क्या जरूरत थी? वो जो मुलाकात हुई थी उसमें हमारे एक और सहाफी दोस्त भी मौजूद थे, इरशाद भट्टी साहब उनका नाम है। अब ये दिन गुजर गए, आज रोजनामा जंग में उनका कॉलम छपा है उसी मुलाकात के बारे में। भी आज ही लिखा है। उन्होंने ये लिखा है, इसी बैठक में सूरत हाल तब दिलचस्प हुई जब सेक्रेटरी खारजा ने आकर कहा फ्रांसीसी सदर बात करना चाह रहे हैं, और फ्रांसीसी सदर बात करना चाह रहे उसी वक्त उसको कोट अनकोट में लिखा है। ये तो निकाह फ्रांसीसी सदर कब बात करना चाह रहे हैं? भी उसी वक्त की बात कर रहे हैं। साथ में उन्होंने लिखा है मिलिट्री सेक्रेटरी और सेक्रेटरी खारजा दोनों आए और उन्होंने आके कहा कि बात करना चाह रहे हैं। ठीक, मैं नहीं मानती अभी भी। इमरान खान बोले मुबारकबाद ही देना होगी, मतलब कि ही मस्ट बी कॉलिंग टू, यार वो यानी मुबारक ऑब्वियसली ये तो मतलब बात बता दे मैं मीटिंग में हूँ, आधे घंटे बाद बात करूंगा। अब बीबी एक सहाफी झूठ बोल रहा है खुश करने के लिए इमरान खान को, दूसरा सहाफी झूठ बोल रहा है इमरान खान को हीरो बनाने के लिए, तीसरा नहीं। ये सारे मिलके क्यों झूठ बोलेंगे? खुश करने के लिए खुद ही बता दिया आपने। सही है। आप वो बीबी क्यों इसमें कुछ फील गुड है तो क्या कहीं पता नहीं क्या है, लेकिन तो क्या वजीर आजम का कोई प्रेस सेक्रेटरी नहीं है कोई? क्या वजीर इत्तलात नहीं है? हाँ है, मगर वो तो अभी मतलब वो लोग। वजीर खारिजा जब कह रहा है, जिसका हमें इंतजार था कि एक वजीर खारिजा होना चाहिए, वो कह रहा है कि नहीं जी टाइम फिक्स हुआ है। हाँ, that still makes more sense नुसरत साहब। ओ भाई, तो इसका मतलब है ये जो सेक्रेटरी खारिजा है ये ड्रामा लगा रही थी। शी वांटेड कि ये वजीर आजम साहब की मीटिंग खत्म हो, तो उन्होंने फिर बहाना लगाया। आई विल, भाई इतने सारे लोग मिलके तो झूठ नहीं बोल सकते बीबी, एक मीटिंग है। जो 3 लोग, अरे भैया इसी मीटिंग के बारे में तो, अरे एक मिनट ना, जो लोग वहां बैठे थे ये 3 सहाफी, उन्होंने जो सुना वो तो उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। अब उसके पीछे मतलब मुझे क्या पता कि वो क्यों। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये वाकया एक बात तो तय हुई कि हुआ कि सेक्रेटरी खारजा साहिबा जो अपनी रिटायरमेंट के करीब हैं, शायद एक्सटेंशन लेनी होगी, एक ड्रामा रचा रही थी, या वजीर आजम साहब ने पहले कह रखा होगा कि मैं बैठा हूंगा, या वजीर आजम साहब के किसी मीडिया मैनेजर ने सोचा होगा ये बहुत अच्छा कि यार ये एक मैसेज जाना चाहिए कि जब बैठे हो तो एकदम से एक मिनट ठहरे सर, एक्सक्यूज मी सर, वो ये द फर्स्ट पॉलिटिशियन को ऐसा ड्रामा करने वाला कोई जरूरी तो क्या हो गया? नहीं, करते हैं ऐसी हरकतें लोग, ये तो होती है ना, चीजें प्लांट नहीं की जाती स्टोरी है। तो अच्छा, तो इसका मतलब ये है, हो सकता है कि हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर नहीं, फॉरेन सेक्रेटरी भी झूठी, ड्रामेबाज। नहीं, क्या कर रहे हो इस मुल्क के साथ यार? एंड यू वांट द वर्ल्ड टू टेक यू सीरियसली। नौजवान नस्ल को खुश
ایک اور نقطہ نظر سے بھی خدا کے لیے سوچ لو، پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ پر ڈالنے کے لیے جن لوگوں نے ایبسلیوٹلی مدعی کا کردار ادا کیا وہ 3 ملک تھے، ایک تھا امریکہ، ایک برطانیہ، ایک فرانس. صحیح. یعنی فرانس از ون آف دوز کنٹریز کہ جن کی شکایت پر ہمیں گرے لسٹ پہ ڈالا گیا. بالکل ٹھیک ہے. فرانس اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ وہ نیٹو کا رکن بھی نہیں ہے. صحیح. امریکہ سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. ٹھیک. کہتا ہے کہ ہمیں آپ کی چھتری میں اپنا دفاع نہیں کرنا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. رائٹ. فرانس وہ ملک ہے جس نے ہمیں میراج طیارے بھی دے رکھے ہیں. ٹھیک. فرانس وہ ملک ہے جس سے ہم نے آگسٹا سب میرینز بھی خرید رکھی ہیں. صحیح. اس سے پہلے ہمارے پاس اس لیول کی سب میرینز نہیں تھی. ٹھیک ہے. فرانس وہ ملک تھا جس نے ہمارے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ایٹمی ری ایکٹر پرووائڈ کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا. صحیح. اور امریکنوں نے پریشر ڈال کر اس کو رکوایا. ٹھیک ہے. I wish someone would tell all this to عمران خان. ٹھیک ہے. مطلب واقعی اب ان کو یاد دلانے اس کا صد اب اور آخری ایک اور بات آج کل کے تناظر میں خاص طور پر ابھی جو ہالینڈ کے ساتھ ہمارا پھڈا چلا ہے، اس وقت پورے یورپ میں 2 ملک اور 2 سیاسی رہنما رہ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں بھائی خدا کے لیے ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتے. ایک جرمنی کی چانسلر، یہ فرانس کے، دوسرا یہ فرانس. ہاں ورنہ یورپ میں اور کوئی نہیں ہے جو سمپتھی. یہ شخص مسلمانوں کے بدترین دشمنوں کو فار رائٹ کو شکست دے کر آیا ہے اور ابھی تک یہ اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ یار نہیں، ہم لوگوں کو خدا کے لیے مت کرو. اب فرانس کا صدر ٹیلی فون کرے اور عمران خان کے او مبارک دینی انہیں، ان کو بات ہی کر لیں. عجیب سی بات لگتی. اگر یہ غلط ہے تو آپ یہ میسیجز کیوں دے رہے ہیں؟ It is beyond me. فرانس کا پورا پریس سیکشن ہے، ایک لفظ پڑھا جاتا ہے. What message you are conveying؟ وہ مجھے کہہ رہا ہے بریک لے لو، میں میسیج کی کیا بات کروں. چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. اچھا مجھے بتایا گیا ہے لاہور سے کال ہے، وہ لے لیں پھر دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. سر آپ بہت اچھا آپ نے ڈسکس کیا ہے یہ جو ابھی آپ نے پروگرام کے اس میں بتایا تھا. تو سر آپ سے یہ پوچھنا ہے ہماری اس طرح فورن آفس میں کوئی اس طرح کا نہیں، کوئی اتنا سی ایس ایس کر کے آتے ہیں یا یہ کہ پی ایم کو کوئی گائیڈ کر سکے یا ان کو؟ بھیا پی ایم کو گائیڈ اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ گائیڈنس چاہ رہے ہیں. اچھا سر. ہاں تو جب یعنی نئے پاکستان کا نیا وزیر اعظم ہو تو وہ کچھ اپنے سوچ کے ساتھ کوئی نئی ڈپلومیسی نہیں. بابا اگر اس طرح دیکھنا ہے تو ٹرمپ بھی ٹویٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد اور اس کے لوگوں نے سر پکڑ لیتے ہیں کہ آج کیا ہو گیا. بالکل. لیکن یہاں تو لگتا ہے وہ شامل ہیں ہمارا لوگ جن کو سر پکڑنا چاہیے. ہاں جن کو سر پکڑنا چاہیے وہ خود شامل ہیں. وہ آتے ہیں ایکسکیوز می مسٹر پرائم منسٹر، ہاں جی فرینچ پریزیڈنٹ از آن لائن، یا اردو میں کہا ہوگا کیونکہ شاید انہوں نے لگایا ہوگا کہ میرے دفتر میں صرف قومی زبان بولنی ہے. تو انہوں نے کہا ہوگا جناب وزیر اعظم صاحب فرانس کے صدر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس سے کہہ دیں کہ اگرچہ جنجوا بھی اتنی ایسی اردو تو نہیں بول سکتی، خیر چلیں ہو سکتا ہے سیکھ لی اور ڈپلومیٹ جلدی سے سیکھنی پڑتی. تو میں عرض صرف یہ کر رہا ہوں کہ جب ایک پورے فورن مطلب اگر فرض کرو کہ یہ بات آ کے شاہ محمود قریشی نے کی ہوتی، یہ بات فواد چودھری نے کی ہوتی، میں کہتا چلو یار سیاسی لوگ لگا دیا. ہاں یس. فورن سیکٹری ساری زندگی آپ فورن آفس میں لگا کر اس مقام پر پہنچتے ہیں، اور جب آپ کیا پرائم منسٹر کو یہ نہیں بتا سکتے کہ سر اگر یہ واقعہ بھی ہوا ہے تو پھر بھی یہ بات بتانے والی پلیز اسی میٹنگ کے دوران بہت ساری چیزوں کے
बात करते हुए कहा गया कि दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड। शायद नहीं कहा गया होगा, मैं हैरान हूँ। कहा गया है ना तो कुछ ये बातों के बारे में बीबी, जिन लोगों ने, मैं रऊफ क्लासरा साहब ने 2 किस्तें लिखी हैं, एक दो और ने भी, वो मेरा ख्याल है वो अल्फाज होंगे या वो बातें होंगी जो उन्होंने अपने GHQ जाने के बारे में या ब्रीफिंग के बारे में की होगी। ठीक, सेंसिटिव नेशनल इशू, वो उनको शायद वजीर आजम ने खुद कहा या उनके इर्द गिर्द बैठे किसी ब्यूरोक्रेट ने या उनके किसी सियासी मुआवन ने कहा होगा कि यार दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, और अखलाकी तौर पर आपका फर्ज है कि आप जब बैठे हुए ऐसी ब्रीफिंग में आपसे कहा जाए कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, तो ऑफ द रिकॉर्ड ये तो थी ही पोस्चरिंग ऑफ द रिकॉर्ड। ये वाली बात तो ये क्यों ऑफ द रिकॉर्ड? इस बात को भी रोका जा सकता था, इसलिए नहीं कि ये पोस्चरिंग थी, तो जानबूझ के किया गया ना दिखाने के लिए। तो जब आपने करना ही है ये, तो आप यही करूंगा, वरना उसके बाद ये तो फिर अगर ये पोस्टरिंग कर रहे हैं तो फिर आपका वजीर खारिजा भी डिनाइल ना करे। हाँ भाई फिर इस पोस्टरिंग पे कायम रहो। मतलब अगर सवाल करने वाला कहे कि वजीर खारजा साहब वो जो फ्रांसीसी सदर ने जो कॉल की थी वो वजीर आजम साहब ने, यार वो बिजी थे ना उस वक्त, तो क्या हुआ? यानी कि फ्रांस के वजीर आजम की कॉल थी ना, केड़ी यार को खुदा दी कॉल है, क्या हो गया यार? आप ग्रो अप, इट्स न्यू पाकिस्तान, वी डोंट टेक कॉल्स लाइक दिस। शाह महमूद कुरैशी स्टक इन ओल्ड पाकिस्तान। आज अगर आप वो सुन रहे थे शॉर्ट, उसमें भी वही जबान इस्तेमाल कर रहे थे, कन्वर्जेंसेस वाली जो अमरीकी तब करते थे 8 से 13 के दरमियान में, तो वो क्यों करेंगे? अल्लाह खुदा का वास्ता है, बस दे आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। आपस में ऊपर रहम करो मेरे मुल्क के ऊपर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इनकी आपस मेरे मुल्क पे रहम करो। ये चौथा डिप्लोमेटिक ब्लंडर है इनका, तो आप क्यों हैरान हो रहे हैं? आप समझ नहीं रही हो। आप देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि लेटेस्ट जो इस वक्त वहां पे एक दीवाना शख्स बैठा हुआ है वॉशिंगटन में, कनाडा, हमसाया, एंग्लो सैक्सन, हर चीज मिलती जुलती, हाँ वो उसके साथ नहीं, मैं तो लगाऊंगा। हाँ फिर अब वो नहीं हुई ना, नहीं हो रही उनकी तजारती डील। बिल्कुल। अच्छा, जर्मनी की दरामदात पर टैरिफ, फ्रांस पे वो। अब जो बात करने की कोशिश कर रहा है ट्रम्प के साथ के साथ, ये तो ना करें हमारे साथ, हम लोग एलाइज हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं यार, हमारा एक सिस्टम है। आप चीन को सबक सिखाना चाहते हैं, प्लीज हम सबको क्यों रगड़ा दे रहे हो? कहता नो अमेरिका फर्स्ट। सो फ्रांसीसी सदर उसमें अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है कि मैं किसी ना किसी तरह बहला फुसला कर ट्रम्प को कहूं कि जान दो पहलवान जी कि ना कमज बैग हो। इसी तरह ये मर्केल के अलावा दूसरा बंदा है जो पूरे यूरोप में बेचारा दीवानों की तरह कह रहा है कि नहीं भाई, हमें मुसलमानों के साथ, इस्लाम के साथ इस तरह नहीं लड़ना है। और तीसरी बात ये मैं कहूं, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। भारत फ्रांस से मिराज से भी एक बालातार एक राफेल एक तैयारा है, वो खरीदना चाह रहा है, उसकी इंटरनली भी मुखालिफत हो रही है। अमेरिका भी चाह रहा है कि भाई ना खरीदे, उन्हीं से ही माल लिया जाए। सही, ठीक है ना? तो हमें तो फ्रांस को अपनी साइड पे करना चाहिए ना। बिल्कुल, इन तमाम चीजों को ज़हन में ना रखते कि हुए इस तरह की बातें करें। ये थोड़ी है ओए आओ उसको को बात करनी है, और नो वे इट डजंट हैव। तो वरना आज फिर आ जाती यार कॉल, वो मेरा ख्याल में वो भी अब जो बकौल आपके फिक्स हो गई थी, और उसी लिए फोन आया था। तो हाँ, इसीलिए आया था। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, आज वो कॉल क्यों नहीं आई? क्या बैलेंस खत्म हो गया मैक्रोन के फोन में या क्या हुआ? नहीं यही है ना, पहले मिस कॉल करता रहे, अचानक मिल गया, उन्होंने कहा हे वेयर इज, उसके बाद उसने जमा पागल। चलें जी, आज बैलेंस बुक गया होना था फिर हुई। अब ये इजी लोड कर दें कहें हाँ वही कह रही हूँ मैं, फॉरेन मिनिस्ट्री बैलेंस भेजेगी तो कॉल आएगी। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाक अमरीका ताल्लुकात पे जो अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने आना है इसी हफ्ते, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ अच्छा, अब यही रोना है कि या अल्लाह हमें क्यों वज़ीर ख़ारजा दे दिया। भैया ये दोबारा क्लिप चलाना अगर चला सकते हो जल्दी से, जो इन्होंने फरमाया था। आई होप तुमने लाइन अप किया हुआ है कि नहीं।
की हुकूमत की सूरत हाल ये थी कि उनका तो किसी लेवल पर कोई इंगेजमेंट ही नहीं हो रहा था। बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है, चूँकि पहले बता दिया हमने। अब वो कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत का किसी लेवल पर कोई इंगेजमेंट, यानी अमरीकियों के साथ उनका किसी भी तरह का कोई राबता, कोई ताल्लुक, कोई बातचीत, को गुफ्तगू नहीं थी। आगे एक्सप्लेन। अब ये बात वजीर खारजा कैमरे के ऊपर कह रहा है। बीबी बोल बोल पाकिस्तान नाम का एक प्रोग्राम, मैं तो तुम्हें याद होगा कि कब से रोए चले जा रहा हूँ। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं यार आप सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो आज भी कहता है आप तो आज अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात पे ही बात कर रहे होंगे, आप लोग तो और कुछ करते क्या नहीं। करें, अब क्या करें बाबा, ये इतने संगीन मामलात हैं। मैं अब हेलीकॉप्टर का रेट निकालने में नहीं, मुझे रेटिंग्स के लिए करना हो तो फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। फिर कोई ऐसी बात नहीं, हमने भी यही धंधा किया है भाई सारी जिंदगी, हमें पता है चस्का कहाँ होता है। लेकिन एक सहाफ़ी के तौर पर गुलमीने मेरी जिम्मेदारी है जहाँ मैं देखूँ यार ये बात तो क्योंकि ये मेरे और आप, मैंने तो जो गुजार ली सो गुजार ली, आपके फ्यूचर का, आप ही के फ्यूचर का नहीं, आपके बच्चों के फ्यूचर का भी मसला है। ये इतनी सिंपल बातें नहीं है जितनी हमें दिखाई जा रही है। अब इसी से मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा बीबी मुझे एक टाइमलाइन दे दो। नाम नेहाद जो नई अफगान पॉलिसी अमेरिकी सदर ने दी वो दी 21 अगस्त को पिछले साल। उसके बाद 3 से 6 अक्टूबर 2017 ख्वाजा आसिफ वाशिंगटन गए। बिल्कुल। वहाँ उनकी उस वक्त के वजीर खारजा से मुलाकात हुई, टिलरसन जो था, टिलरसन से। वो कहता रहा कि आप तो खैर ये बातें कर रहे हो, हम तो आपकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज होता देख रहे हैं। तो मैं हंसना शुरू हो गया तुम्हारे सामने, कितनी मरतबा मैं कहा ख्वाजा साहब वो तो कह रहा है कि पहले अपनी खैर मनाओ, हमें छोड़ो। फिर मैं बहुत खुश हुआ कि टिलरसन की छुट्टी हो गई, तो मैंने बड़ा खुश हुआ, मैं कहा ये ख्वाजा आसिफ को कह रहा था कि अपनी खैर मनाओ, तो ये फारिग हो गया। उसके बाद बीबी सेक्रेटरी एयरसन खुद यहाँ पे 24 अक्टूबर को तशरीफ लाए। अमरीकी वजीर खारजा जब आया तो वजीर आजम हाउस में उस पर भी हमने प्रोग्राम किया था, बहुत तारीफ की हमने, कहा यार ये बहुत अच्छा हुआ कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अलग मिलते, वजीर खारजा अलग मिलते, वजीर आजम साहब ने दोनों को साथ बिठाकर बात की ताकि ये तासुर न जाए कि जी एक पेज नहीं तो फलां फलां, भाई गल मुको करो क्या बात करनी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह बाद में सही। उसके बाद बीबी 16 नवंबर 2017 को जनरल बाजवा साहब से मिलने यूएस सेंटकॉम का कमांडर वोटल आया। बिल्कुल ठीक है। फिर अमरीकी वजीर दिफा आया 4 दिसंबर 2017। अब ये सिर्फ हम ट्रंप के तकरीर के बाद उसके बाद 17 मार्च को साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की माइक पेंस अमरीकी नायब सदर से मुलाकात हुई, जिसमें हम वो सिर्फ लोगों को यही दिखाते रहे कि उनके कपड़े उतार, जब क्योंकि वो निजी दौरे पे गए थे तो वो सिक्योरिटी चेक हुआ उनके साथ। बिल्कुल राइट। उसके बाद एलिस वेल्स 28 मार्च को आई है, 23 अप्रैल को आई है, 1 से 3 जुलाई तक यहाँ पे थी, और 3 जुलाई को आखिरी उसकी मुलाकात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी हुई है, यानी आज से एग्जैक्ट 1 महीना पहले। हाँ बिल्कुल। और इस साल तो 3 मरतबा आ चुकी है वो पाकिस्तान, सिर्फ इस साल में 1 2 3 4 5, यानी ये 10 हम अपने तौर पर इस प्रोग्राम में तस्करे के जरिए एंगेजमेंट्स, ये तो वो है जिनका हमने सिर्फ जिक्र किया, हो सकता है कोई रह भी गई हो बीच इलेक्शन, और हो सकता है कि कुछ हमारे बगैर भी, बिल्कुल, जिनका हमें मालूम ही नहीं चला। एक्सक्यूज मी, ऐसे भी रवाबित होते हैं, ऐसा मसला नहीं है बीबी, होते हैं और यकीनन हुए होंगे। ठीक है, या डेफिनेटली। यहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर भी घूम रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। वो कहते हैं नहीं नहीं हमारी बात हो रही है, उसमें उधर से कोई उधर से टीए कमा रहा होता है, कोई इधर से कर रहा होता है कि चलो यार एक चक्कर, ओ डोंट वरी, जिसको बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं कहते। बिल्कुल ठीक। मकसद आप ये उसमें बच्चों को भी मिला, एंगेजमेंट बहुत हुई है, बच्चों को भी मिलाओ। ठीक। और you know actually my daughter is also here in Colombia, you know, हाँ, बिल्कुल doing very well, you know, she got scholarship
Of course she did. When I was foreign secretary, you know, or I was whatever additional secretary, you know, ऐसा एक बच्चे ज़हीन भी बहुत होते हैं जब आप ओहदे पर हों। Definitely. जैसे रिटायर हो वाले तो उसके बाद वही बच्ची जो है इंतहाई नालायक साबित होती है, बेचारी इंटरनेट पे फॉर्म भर के वो फारिग हो जाती है, मगर कोई दाखिला नहीं मिलता, कोई स्कॉलरशिप देने को तैयार नहीं होता। स्कॉलरशिप क्या, दाखिला भी। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता है, वजीर खारजा साहब किस ढिठाई से आप कैमरे के ऊपर कह रहे हैं कि जी चूंकि साबिका हुकूमत की तो कोई इंगेजमेंट ही नहीं थी, ये समझते कि तो इनके बाद आपने जो अंगूठी पहनाई, आपने जो एंगेजमेंट की, उसमें यह हुआ कि अमरीकी वजारत खारजा ने कहा कि हमने ये बात कही, हाँ, आपने तरदीद की, बिल्कुल, आप सेनेट में खड़े हुए, लफ्ज उस प्रेस रिलीज में था डिसाइसिव, कि चूंकि पाकिस्तान ने डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया वगैरह वगैरह वगैरह, सेफ हेवंस। हफ्ते के दिन भी छुट्टी होती है, हफ्ते के दिन रॉयटर एक्सक्लूसिव दे रहा है, और हफ्ते के दिन वहां की वजारत दिफा के स्पोक्स पर्सन को काउंट करता है और एक्सक्लूसिव उसको ब्रेकिंग न्यूज बना के कि वो जो पाकिस्तान के कोएलिशन सपोर्ट फंड, उसके बाद आप खड़े होते हैं कि साहब एक मिनट ठहरिए, और खुदा रहा हमें क्यों वजीर खारजा दिया, हम बगैर वजीर खारजा के अच्छे थे। नाउ ही हैज द चीक टू टीच मी डिप्लोमेसी। देखिए ये इमदाद की बात नहीं है, ये तो हमारे पैसे थे। किस बात के पैसे? अमरीकी काम करने के, क्या कह सकते हैं। Why? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अब मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप इस तरह की बात मुझे ही बता रहे हैं वज़ीर ख़ारिजा साहब कि पाकिस्तान को असल मसला अमेरिका से इस वजह से आ रहा है, हाँ, कि साबिका हुकूमत की अमेरिका के साथ कोई इंगेजमेंट नहीं थी, हाँ, तो और मैं आपको रिकॉर्ड से ये बताता हूँ कि जी अगस्त से लेकर सिर्फ एक माह कबल तक सियासी और अस्करी दोनों क़यादतों की कितनी बार मुलाकातें हुई। हाँ, और ये तो कुछ है, इसके अलावा भी बहुत होंगी। और साथ ही मैं इशारतन ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा भी बहुत कुछ शायद बैकडोर भी हुआ होगा। अब गुलमी ने आपका, अगर आप वजीर खारिजा बने हैं तो भैया आप हमें ये बताइए कि यार ये इतने सारी इंगेजमेंट्स के बावजूद, हाँ आप ये कह सकते हैं कि साहब साबिका हुकूमत इतनी मुलाकातें करने के बावजूद अपना केस सेल ना कर पाई, लिहाजा अमेरिका से अब हमें ये सुनने को मिल रहा है, तो आई माइट हैव टेकन यू सीरियसली। वो फिर भी एक आर्गुमेंट, बल्कि वो तो आपके आर्गुमेंट को शाह महमूद कुरैशी साहब मजबूत बनाता, फिर उसके बाद आप बड़क लगाते हम आ गए तो गर्मी है बाजार देखना, अब जब आएगा पोम्पियो तो जब मैं बात करूंगा तो लग पता जाएगा। तो चले, एक मैं कहता हूं जी कि आप अगर एंटी पीटीआई हो तो अलग बात है, बट अगर आप थोड़े से गैर जानिबदार हो तो आप कहेंगे यार ये बात तो वैलिड है यार कि ये इतनी मुलाकातें हुई हैं और ये कैसी ना कमी हुकूमत थी हमारी गुज़श्ता कि जो अपना केस ही सेल ना कर पाई। मतलब इट मेक सेंस, यू कैन बिल्ड अ केस ऑन इट। आप ये नहीं कह सकते, लेकिन खड़े होकर हमारे लाहौर की गलियों में कहते हैं गिटे जोड़ के झूठ बोलना। आप कहते हैं जी असल मसला इसलिए है कि साबिका हुकूमत की तो कोई इंगेजमेंट ही नहीं थी। हाँ नहीं, ये बात तो गलत है, लेकिन ये पहले ये भी तो कहते थे ना कि हम इनसे पैसे नहीं लेंगे, तो फिर अभी कह रहे हैं कि ये तो हमारे पैसे रोक लें। अब मेरा इससे ज्यादा मेरा सेंसिटिव सवाल है कि अगर आप अपनी गुफ्तगू से मुझे गलत बयानी करते नजर आ रहे हैं तो वो उनको क्या कहेंगे? मुझ पाकिस्तानी सहाफ़ी को जो थोड़ा सा अलर्ट था और जिसने यूं फिगर्स इकट्ठे कर लिए
अब मेरे प्यारे शाह महमूद कुरैशी साहब, आपके साथ जब कोई गैर मुल्की मिलेगा, हाँ तो वो क्या सोचेंगे? मतलब क्या फ्रांस के प्रेस वालों ने वो देखी नहीं होगी खबर, फ्रांस के सदर को कह दिया या इस किस्म के और भी? नहीं, उसका तो कोई फायदा नहीं। देखो बीबी, ऑफ कोर्स ये अगर इस बात में अगर फर्ज करो मकसद यही था कि ये बताना कि कैसा आ गया, इट वुड हैव बीन टॉप लीड स्टोरी कि फैक पीएम स्नैप्स अच्छा। और आपको ये बात शायद अंदाजा नहीं है, चूंकि हम लोगों का सारा एक्सपोजर जो है वो इंग्लिश प्रेस के साथ है। फ्रांस में वहाँ के सदर को बहुत इज्जत दी जाती है, ठीक, राइट, ठीक। लेकिन नया ज़माना आ गया ना, तो जब से वो आया था, याद है ना सार्कोजी, वो जिसकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह कभी वो स्कूटर पे बैठ के जाता था रात को। नहीं, वो हॉलैंड था, वो अच्छा उससे भी पुराना होलंदे था, उससे पहले वाला सरकोजी। उसके बाद से ना, और फ्रांसीसी जो सहाफत है वो सारी की सारी बेसिकली जो है वो सटायर है, ठीक, गुस्सा है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए वहाँ से इनकलाब फ्रांस जो है वो जर्नलिज्म से शुरू हुआ था, ठीक है। आपको याद होगा एमिल जोला बहुत मशहूर नावल निगार है, उसका बेसिक जो था याक्यूज, मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ, वो एक मुकदमा चल रहा था। जो वहाँ पे जो ज़हनी इनकलाब आया, वो रूसो जो फिलोसोफर था, जो राइटर था, और वो लिखता ही मस्खरापन करता था। तो आप कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ होता तो उनकी प्रेस ने उनके साथ उड़ा के रख देते होती, फिर वो ये तो अभी उनका एक चाहिए खामोश है इस वक्त, क्योंकि इसका मसला ये है कि ये ट्रेड यूनियंस के पीछे पड़ गया है, ख़ास तौर पर रेलवे का, क्योंकि वहाँ पे तो सारा वो जो है वो सस्ती तरीन उनकी वो इंटरसिटी, ये वो यूनियन के साथ कहता है नहीं जी मैं, चूँकि ये वो अंडरस्टैंड, तो आजकल इसके पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, इस द हनीमून ओवर और ये और वो क्या इसकी वैसे ही जो है वो वल्नरेबिलिटी है थोड़ा सा, यानी कि मेल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसकी चूँकि बेगम साहबा इसकी टीचर थी, वो तो पहले ही एक बहुत बड़ा मजाक बना, तो वो एक उसको सारा मिक्स करके कि ये बेबी क्या आ गया है। सही, ठीक है, तो उसकी वैसे ही वो चले देखते हैं नुसरत साहब, हो सकता है कल आ जाए उसका फोन, या अल्लाह हमें वज़ीर ख़ारजा न दे, बेहतर यही है। चलिए आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, इजाजत, खुदा हाफिज।